Today, let us start syllabus, new topic, Fourier transformation. So let us start Fourier transformation. Beginning of the Fourier transformation will start the concept of transformation. Previous class में already discussed in Laplace transform. So again we repeat transformations of concept, that is an improper integral of the form kernel of S minus infinite to infinite, kernel of st ft dt is called integral transform of ft. If it is convergent, sometimes it is denoted by fs or t of ft. Thus, functions of s, that is transform ft equal to minus infinite infinite kernel of st ft dt. According to this formula, kernel will be changed and transform also changed, right? So the function kernel of st appearing in integral is called kernel of the transform. Here s is a parameter and s independent of t. S may be real or complex number. If we take kernel of st equal to exponential of minus st 0, t is greater than equal to 0, t less than 0. Okay? Then equation 1 becomes kernel of st will be changed. Then the transform will change, that will known as Laplace transform. That is 0 to infinite functions of t exponential of minus st dt. This transform is known as a Laplace transform. And similar way, kernel will be changed. That is Hankel transform. So we know that 0 to infinite functions of t, j, and st dt. This is Hankel transform. Mellin transform is known as, that is kernel of st is t to the power s minus 1 dt. That is Mellin transform. Fourier transformations of ft is minus infinite ft exponential minus I st dt. Okay? Kernel will be changed, then transformations is also changed. So let first transform will get the Laplace transform, that is kernel Hankel transform, Mellin transform, and Fourier transform. Infinite Fourier transformations of fx is known as the infinite Fourier transformation fx, that is x defined as minus infinite to infinite, is denoted by fs, or Fourier transformation fx is defined as fs equal to Fourier transform fx equal to minus infinite to infinite fx exponential of minus I sx dx. The inverse formula for the Fourier transform is given by fx equal to f inverse fs equal to 1 by root 2 by minus infinite to infinite fs exponential of I sx ds. That will have inverse formula of Fourier transformation. Or that formula here, Fourier transformations of fx, Fourier transform fx. That formula is known as inverse transformations of Fourier transformations. Inverse formula of Fourier transformation. Infinite Fourier sine transformations क्या होता है? The Fourier sine transformations of fx 0 to infinite is denoted by f s x. Suffix s defined as sine. That is Fourier sine transformations of fx is defined as 0 to infinite fx sine sx dx. A similar way, inverse formula is given by the 1 by 2 pi fs s sine sx ds. Fourier sine transformation. And similar way, infinite Fourier cosine transformations of fx. The Fourier cosine transformations of fx 0 to infinite is denoted by fcs or fcfx and is defined as fcs. Here c, suffix c can be defined as cosine. That is Fourier cosine transformations.
is defined as 0 to infinite fx cos sx dx. Cos means the cosine, or here sine means that the sine transformation. Fourier sine transformation and Fourier cosine transformation. And similar way, infinite Fourier cosine transformations can be defined as yeah. नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म. दोनों में रिलेशन क्या होता है? एक्चुअली प्रीवियस क्लास ऑलरेडी हम लोग डिफाइन कर चुके हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म. हियर वी डिफाइन ऑलरेडी डिस्कस द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन. So these two transformations we have the relations. So we define ft as follows. Ft, we define the f functions of ft. We have exponential minus xt high t at 0 when t is greater than 0 and t less than 0. Fourier transformations of ft, exponential minus infinite to infinite, exponential minus I by t ft dt. Fourier transformations. Basic formula of Fourier transformations. So this limit will change minus infinite to 0 and 0 to infinite. Actually functions we have, देखो t का लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है 0. अपर लिमिट 0 में अपर लिमिट 0 दैट विल माइनस इनफाइनाइट टू 0. ये t का लोअर लिमिट क्या है 0, तो क्या होगा 0 टू इनफाइनाइट. these two limit we have माइनस इनफाइनाइट टू 0 and 0 to infinite. अब दिस फॉर्मूला में पुट करो फंक्शन ऑफ ft. तो फर्स्ट इंटीग्रैंड विल हैव 0. अपर लिमिट 0 में वैल्यू क्या फंक्शन ऑफ ft 0. तो फर्स्ट इंटीग्रैंड विल वैनिश. सेकंड इंटीग्रैंड विल हैव, देखो सेकंड इंटीग्रैंड विल हैव 0 टू इनफाइनाइट. दोनों को चेंज कर दो, ये मिलेगा. आफ्टर दैट we'll have the relations Fourier transformations of Fourier transform ft is equal to Laplace transform psi t, which is the required relation. क्लियर है? बोलो. दोनों का रिलेशन क्लियर है? एनीवन स्टूडेंट बोलो. सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ना. कौन ला? पूरा सर, क्योंकि मैं अभी ज्वाइन हुआ, थोड़ा लेट ज्वाइन नहीं हो पा रहा था. फोरियर ट्रांसफॉर्मेशंस का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? फोरियर ट्रांसफॉर्मेशंस का बेसिक फॉर्मूला होता है माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल माइनस आई बाय टी एफ टी dt. ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला फोरियर ट्रांसफॉर्मेशंस का. और फंक्शंस ऑफ टी विल डिफाइन, इसको डिफाइन किया हुआ है अकॉर्डिंग टू दोनों का रिलेशन निकालने के लिए फंक्शंस को डिफाइन इस तरह से हम लोग किए हुए हैं. इस फंक्शन को इस तरह से डिफाइन करोगे तभी जाकर हम लोग दोनों का रिलेशन हम लोग दिखा पाएंगे. ठीक है. सो माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट विल हैव माइनस इनफाइनाइट टू 0 and 0 to infinite. ब्रेक कर द इंटीग्रैंड को. फर्स्ट इंटीग्रैंड जो है इसका वैल्यू 0 हो जाएगा और सेकंड इंटीग्रैंड का वैल्यू मेरा वी हैव. लेट अस नेक्स्ट स्टेप. ये देखो रिलेशन निकाल चुका है. देखो क्लियर है? which is the required relation. बोलो क्लियर है?
देखो find the Fourier transformations of fx. fx डिफाइन क्या हुआ है x, where mod of x less than equal to a and 0 where mod of x is greater than a. According to functions we can express, देखो देखो functions of x equal to x where minus a less than equal to x less than equal to a, ठीक है, and 0 mod of x greater than equal to a. Next is Fourier transformations of fx. We have देखो minus infinite to infinite exponential minus I s x fx dx, ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन को. इसको हम लोग एक्सप्रेस कर दिए, देखो माइनस इनफाइनाइट टू माइनस ए प्लस माइनस ए टू प्लस ए और प्लस ए टू इनफाइनाइट. फर्स्ट इंटीग्रैंड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ 3 अवे, दैट इज सम ऑफ द, ठीक है, इधर है कि नहीं बोलो. लाइन क्लियर है बोलो. एनीवन स्टूडेंट? अनिकेत राज, आर्यन कुमार, इधर है, खुशबू कुमारी, खुशबू कुमारी यस सर. इधर है, यस सर, क्लियर. आर्यन कुमार, यस सर. देखो here the first integrand we solve it, put x minus x equal to y, so first integrand will vanish 0, right. Second integrand, third integrand also vanish 0, only for second integrand we have, clear है बोलो. second integrand we have after that solve by parts, solve the integrand using the by parts. देखो इसको सॉल्व करो, इसको पूरा ऑल फंक्शन को सॉल्व करोगे तुम्हारा ये मिलेगा इंटीग्रैंड का सॉल्यूशन. देखो इधर कि नहीं बोलो.
ये लाइन क्लियर है? बोलो, किसी को प्रॉब्लम है? किसी को पूछना तो बोल सकते हो। किसी को कुछ पूछना है? Find the Fourier transformations of next problem. Functions of x will have, इसको तुम लोग सॉल्व करोगे, इसको भी सॉल्व करोगे, ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम, फाइंड द Fourier transformations of fx डिफाइंड बाय, ये दिया हुआ है, हैंस इवैल्यूएट, इसको हम लोग सॉल्व करना है, दो पार्ट में निकालना है, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करके तुमको दिखाएंगे। इसके पहले प्रीवियस फॉर्मूला से इसको तुम लोग सॉल्व करोगे और सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। क्लियर है? बोलो। प्रणय मिश्रा, यस सर। क्लियर है? यस सर। अब देखो, थर्ड प्रॉब्लम देखो, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसको, है ना। Fourier transform fx माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल माइनस I sx fx dx एक जनरल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं माइनस इनफाइनाइट टू माइनस ए टू ए एंड ए टू इनफाइनाइट, ठीक है। दिस इंटीग्रैंड only we have minus a to a exponential minus I sx dx, ठीक है। here fx का वैल्यू क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है 1, ठीक है। तो तुम्हारा इसका वैल्यू fx का 1 हो गया, इसका वैल्यू तुम्हारा 0 हो जाएगा। बोलो नेक्स्ट स्टेप। देखो इस इंटीग्रैंड का हम लोग सॉल्व करेंगे, सिंपल है। इंटीग्रैंड को सॉल्व कर रहे हैं।
हेलो, अब देखो इंटीग्रेंड को सॉल्व किया तो क्या मिलेगा, 2/s साइन ऑफ s f बार s। क्लियर है कि नहीं बोलो, इसको हम लोग कंसिडर कर लें f बार s। क्लियर है एनीवन स्टूडेंट? आशीष कुमार शर्मा, अनिकेत कुमार राज, अभिषेक शुभम, अभिषेक शुभम, अनंत कुमार प्रधान, किधर है बोलो? आप देखो, ये तो हम इंटीग्रेंड सॉल्व किया थे, क्या मिला, f बार s मिला। f बार s वी हैव मास इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट f(x) एक्सपोनेंशियल ऑफ i sx dx, ये जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, f(x) वी हैव, f(x) का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 पाई 1/2 पाई मास इनफाइनाइट इनफाइनाइट f बार s एक्सपोनेंशियल ऑफ i sx dx। इस f(x) का वैल्यू क्या है, ये तो दिया हुआ है। ठीक है, f(x) का वैल्यू तो दिया हुआ है, f(x) का यहां से निकालोगे तो क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, f(x) का वैल्यू ये हो गया 2 पाई, तो ऑलरेडी है 2 पाई f(x) हो जाएगा, है ना, 2 पाई f(x) मल्टीप्लाई कर दो, और ये चीज तुम्हारा ऑलरेडी यहाँ पर इंटीग्रेंड दिया हुआ है। f(x) का वैल्यू दिया हुआ, देखो f(x) का वैल्यू दिया हुआ है, 2 पाई से मल्टीप्लाई हो गया तो ये मिलेगा तुमको। उसके बाद इसका फॉर्मूला होगा f बार s का फॉर्मूला दिया हुआ है, देखो 2/s साइन ऑफ s से निकला हुआ है, एक्सपोनेंशियल ऑफ s का फॉर्मूला निकालो, cos sx प्लस i साइन ऑफ sx ds, इंटीग्रेंड को सॉल्व करिए। अब देखो, इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट को ब्रेक कर दो,
ये मिलेगा, रियल पार्ट्स को अलग कर दोगे तो ये मिलेगा तुमको। ये फर्स्ट पार्ट तुम्हारा प्रूव हो गया, देखो फर्स्ट इंटीग्रल सॉल्व हो गया तुम्हारा। फर्स्ट इंटीग्रल क्या है, इसको निकालना दिया है, तो फर्स्ट इंटीग्रल तुम्हारा मिल गया यहाँ पर। After that x equal to 0, y equal to 1, we have the second result. क्लियर है, बोलो, इससे कुछ पूछना है तो बोल सकते हो। खुशबू कुमारी, संजू कुमारी, संजू कुमारी क्लियर है। रोहन गुप्ता, रोहन गौप, प्रवीण सिंह कुंतिया, क्लियर है? इस प्रॉब्लम को नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया हुआ, इसको तुम अपने से सोल्व करोगे, ठीक है। किसी को पूछना है तो बोलो। So we stop the share. अब बोलो, किसी को कुछ पूछना है। इसको भेज दिए, तुम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए, देख लोगे इसको, ठीक है। सर हम लोग कॉलेज कब से खुलेगा? इसके लिए बातचीत चल रहा है, हो जाएगा, नोटिस मिलेगा।
कॉलेज तो खुला ही है, स्टूडेंट को बुलाया नहीं गया है, उसके लिए स्टेप लिया जा रहा है। ऐसे भी बच्चे लोग कुछ कुछ आ ही रहे हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस में हॉस्टल हॉस्टल के साथ नहीं ओपन किए हैं। डे स्कॉलर तो आ ही रहे हैं, कुछ ऑफिशियल काम से आ रहे हैं, जा रहे हैं। ठीक है, तो वी लेफ्ट द मीटिंग। तो गाइस नोट्स दे दिए, तुम लोग उसको प्रॉब्लम को समझो और बना लो, है ना।